Hello students, in today's video we'll discuss topic colligative properties. So what are colligative properties? The properties which depends upon the number of solute particles. हमारा जो solution है वो किससे मिलकर बना होता है? Solute and solvent. तो जो properties सिर्फ solute के number पर depend करती हैं, उनकी nature पर depend नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Colligative properties. So what are colligative properties? The properties which depends upon number of solute particles, not on the nature. So these are the colligative properties and there are four colligative properties. कितनी colligative properties हैं? Four types हैं हमारी colligative properties की. Now कौन कौन सी four types हैं? First is relative lowering of vapor pressure. ये हमने टर्म पहले भी डिस्कस करी थी. कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Second colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Third is depression in freezing point. Depression in freezing point. And fourth is osmotic pressure. So these are the four colligative properties and we'll discuss these four colligative properties one by one. So कौन सी है चार हमारी colligative properties? Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. अब हम ये देखेंगे कि हमारी ये चारों colligative properties सिर्फ number of solute particles पे depend करती हैं. हम इसको justify भी करेंगे कि क्या ये सारी colligative properties हैं, हमने proof भी देना है इसका. Yes, so one by one we'll discuss. So firstly we'll discuss relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. हर एक solvent का, हर एक solution का अपना एक vapor pressure होता है. जब भी हम किसी भी solvent के अंदर एक non volatile solute add कर देते हो, पहले एक solvent pure solvent है, उसका कुछ vapor pressure है. जब आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो आप देखते हो कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है. अब नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? ये हमारी जो टर्म है ये हमारी रोल्स लॉ के साथ रिलेटेड है. जब हमने रोल्स लॉ करा था तो उसमें भी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था जिसको हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नेम दिया था. नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स ने हमें क्या बोला है? The partial vapor pressure of component is equal to pure vapor pressure of pure component and its mole fraction. The partial vapor pressure of component of in a solution is equal to vapor pressure of pure component and its mole fraction. ये सारा हमने रोल्स के टाइम पे हमने ये डेरिवेशन डिराइव करी थी. अब हम दोनों टर्म्स को राइट और लेफ्ट दोनों टर्म्स को वन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. PA upon PA naught is equal to XA. Now subtract both these sides from 1. हमने 1 में से इसको subtract करा है. PA naught is equal to 1 minus XA. PA naught minus PA upon PA naught is equal to XB. Now what is XB? XB क्या है हमारा? Mole fraction of solute. Now what is mole fraction? जब हमने concentration terms करी थी तो हमने mole fraction study करा था. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स. अब बी क्या है? ये मोल फ्रैक्शन हमारा सोल्यूट का है तो मेरा एक्स बी क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये मेरा यहाँ पे एन आ गया है. एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर नंबर आ गया है. हमने कहीं भी नेचर की बात नहीं करी है, नंबर की बात करी है. तो यहाँ से हमने जस्टिफाई कर दिया है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्योंकि रिलेटिव. एंड व्हाट इज रिलेटिव? ये जो हमारी पूरी की पूरी टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जस्टिफाई कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is directly related to the number of moles of solute particle. तो यहाँ से हमने इसको जस्टिफाई करा है. फिर हमें क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है. एक तो आता है कि जस्टिफाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हमने यहाँ तक इसको जस्टिफाई कर दिया. सेकेंड इसका आता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो मुझे इसके लिए इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी. तो हम इसको अब ये
प्रूव करेंगे, यहाँ से हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। चलते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन मुझे यूज करना है, इज इक्वल टू एक्स बी था। चलिए इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या देखा है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर ये लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें जो इसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो उसमें जो मेरा सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है डिनोमिनेटर में, वो मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगी। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमें पता है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर दूंगी, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली एन ए की जगह पे उसका मैंने ये उसका एक्सप्रेशन में वैल्यूज फिल कर दी। अब मुझे क्या निकालना है, एम बी। पहले मैं इस चीज को सॉल्व करती हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये मैंने इस चीज को सॉल्व करके लिखा। अब मैंने अपने इस एक्सप्रेशन में से एम बी निकालना है, तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट डब्ल्यू ए। तो इस तरह से अपनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले तो आपने उसका एक्सप्रेशन देना है, देन हाउ विल यू जस्टिफाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी हमने कर दिया। मैंने यहाँ पर बता दिया कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर। देन हमने क्या डिस्कस करा, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग, तो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया अपनी रिलेटिव लोअरिंग से। तो ये हमें सारी चीजें हमें स्टेटमेंट में दे रखी होती हैं, जो वी हैव टू जस्ट फिल द वैल्यूज एंड वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड दिस इज आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ विल डिस्कस सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट से हमारा मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है जी किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज आपके पास वाटर है, आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, आपने वाटर को बॉईल करना शुरू करा, आपने देखा पानी जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपने अब क्या किया, दूसरे केस में आपने उस पानी के अंदर नमक डाल दिया, NaCl। अब सोडियम क्लोराइड जो क्या है, इट इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, इट इज नॉन वोलेटाइल। तो जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हो, तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, वो ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखोगे कि अब आपका पानी, पहले तो नॉर्मल वाटर को बॉईल करा, वो 100 पर बॉईल हो गया, अब आपने अपने उसी पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो अब आप चेक करोगे कि 100 पे वो टेम्परेचर आ चुका है, लेकिन आपका वाटर बॉईल नहीं हो रहा है। इट मीन्स यू हैव टू रेज द टेम्परेचर बिकॉज यू वांट बॉइलिंग, आपको उसको और थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, आप हीटिंग करते जा रहे हो, तो आपका कुछ हाई टेम्परेचर पर जाके आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ये जो हाई टेम्परेचर थोड़ा सा आपने ज्यादा दिया उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका लाने के लिए, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम इस चीज को एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाती हूँ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। मेरे पास ये है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है,
मैंने इसको प्योर सॉल्वेंट, सपोज मैंने वाटर ले लिया है, मैंने इसको बॉईल करना स्टार्ट करा। ये मेरा टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जाकर मेरा पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसका टेम्परेचर नोट कर लिया T1। अब मैंने अपने इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इस टेम्परेचर तक पहुंची हूँ, मैंने देखा मेरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई नामो निशान ही नहीं है, बॉइलिंग तो हो ही नहीं रही है। लेकिन मुझे तो बॉइलिंग करनी है। अब मैंने उसको हीटिंग करते जा रही हूँ, मैं उसको हीटिंग देते जा रही हूँ। एक टाइम ये आया जिस पर ये इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। मैंने इसका टेम्परेचर भी नोट करा, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, T2। मेरा प्योर सॉल्वेंट T1 पर बॉयल हुआ। मेरा प्योर जो सॉल्यूशन था जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था वो T2 पर बॉयल हुआ। तो T2 is greater than T1. The difference between T2 minus T1 is called delta TB. This delta TB is called elevation in boiling point. What is elevation? ये जो आपका डिफरेंस आया है, जितना आपने टेम्परेचर ज्यादा दिया है आपने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। एंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, इट इज मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मोलैलिटी। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, केबी इंटू मोलैलिटी। ना मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। अब अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो मैंने ये प्रूव कर दिया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरा फर्स्ट हाफ मैंने यहाँ पर सॉल्व करा। नाउ केबी क्या होता है, केबी इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका सेकंड नेम, इसको हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जब आपकी मोलर कंसंट्रेशन 1 के बराबर है, इफ व्हेन योर m इज इक्वल टू 1, योर डेल्टा TB बिकम इक्वल टू KB। तो यहां से आप अपनी KB की डेफिनेशन भी दे सकते हो। तो आपका व्हाट इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, इट इज दैट टेम्परेचर at which we are having 1 molar concentration in the solution। तो ये थी हमारी Kb की डेफिनेशन। अगेन हमको यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे इस फॉर्मूले को फिर से लेके आना पड़ेगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, यहाँ पर आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, और साथ में क्या है हमारा WA। ये हमारे इसी एक्सप्रेशन में मैंने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फिल करी है, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे अपने इस फॉर्मूले में से MB को निकालना है, तो क्या आ जाएगा जी, आपका MB इज इक्वल टू KB WB 1000 upon delta TP WA। So this is the complete derivation of elevation in boiling point। तो ये हमारा elevation in boiling point है, इसमें हमने ये डिस्कस करा है। क्यों आया है elevation? Because we have added non-volatile solute in our solution। Then we have proved it is a colligative property because it depends only on the number of moles of solute। Then we have calculated the molecular mass of solute from elevation in boiling point। So ये थी हमारी second colligative property। Now we will discuss third colligative property, that is depression in freezing point। So क्या है हमारी third colligative property? Depression in freezing point। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच योर सॉलिड एंड लिक्विड फेज एग्जिस्ट। उस टेम्परेचर पर जहां पर आपकी दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। जब आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, पूरा फ्रीज में तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट।
अगेन इसको मैं भी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। तो कौन सी सबसे पहले तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। चलिए लेट्स डिस्कस बाय ग्राफ। छोटे से ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। मेरे पास सॉल्वेंट था, मैंने उसका टेम्परेचर कम किया, मैंने देखा कि मेरा जो सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज हो गया है। क्लियर, ये मेरा टेम्परेचर है जहां पर मैंने देखा कि ये फ्रीजिंग हो गई है। मैंने इसको नेम क्या दे दिया, T1। ये मेरा क्या था, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये उसका टेम्परेचर है। फिर मैंने अपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब मैंने देखा कि मेरा जो सॉल्यूशन है इस टेम्परेचर पर जाकर उसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर आ गया है, लेकिन वो फ्रीज ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे तो फ्रीज करना है, मैंने उसका टेम्परेचर और कम करा। मैंने देखा कि इस टेम्परेचर पर जाकर उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई है। ये प्योर सॉल्वेंट था, ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है। फिर T2 is less than T1. The difference between T2 is less than T1. So T1 minus T2 is called depression in freezing point. So इस चीज को हम क्या बोलते हैं, depression in freezing point. So depression in freezing point is again directly related to molality, that is the molar concentration of the solute in the solution. So depression in freezing point is equal to Kf m. What is Kf? It is the depression in freezing point constant. It is the molar depression freezing point constant. Clear? और इसका सेकंड नेम क्या है, Kf को हम एक तो मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, it is molar depression in freezing point constant and it is cryoscopic constant. Now if the molar concentration is equal to 1, your delta Tf is equal to Kf. तो यहां से हम Kf को डिफाइन कर सकते हैं, the molar depression freezing point constant is the temperature at which the molar concentration of solute is taken as unity. तो ये थी हमारी TF एंड KF के बारे में। अब हमने जस्टिफाई करना है कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस क्या ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ पर हमने मोलैलिटी की बात करी है। चलिए हम प्रूव करते हैं, TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में करा था। तो अगेन सेम ही चीज हम करेंगे, बी की जगह पर एफ लिखना है। बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास सेम यहाँ पर आएगा आपका। यहां से हमने एम बी निकालना है। एम बी इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। So this is our थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सारी चीजें आपको दे रखी होती हैं, जस्ट यूनिट्स को आपने बहुत केयरफुली आपने कंसीडर करना होता है। अगर टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया है, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करिए। क्लियर, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी आप ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये आप छोटे होते ही ये टर्म्स पढ़ते हो अपनी 7 से आप ये करना शुरू कर देते हो। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। सो उसी से रिलेटेड हमारी टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो बिफोर डूइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज आवर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विल डिस्कस कि ऑस्मोसिस क्या होती है और डिफ्यूजन क्या होता है। तो ऑस्मोसिस सभी आप फेमिलियर हो इस टर्म से। हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल है पाई। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर। सो बिफोर डिस्कसिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, नो व्हाट इज ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। बहुत केयरफुली ध्यान से आपने ये डिस्कस करनी। बस हम क्या करते हैं, जब भी कोई पूछता है व्हाट इज ऑस्मोसिस, फ्लो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई टू लो, हमें ये ध्यान में ही नहीं रहता कि हम क्या हाई टू लो बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास करने देती है। इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास बट इनहिबिट्स द पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी नेचर ने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कुछ नेचुरली कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी हैं जो सेमी परमिएबिलिटी का काम करती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। और सबसे सिंपलेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, नेम वन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसको हम आर्टिफिशियली हमने प्रिपेयर करा है, इट इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्लियर? तो ये थी हमारी बात ऑस्मोसिस की। नाउ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? इट इज द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको सिंपली हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? जो डिफ्यूजन है, हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंसेस जरा क्लियर कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन क्या कहता है? इट इज द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, डिफ्यूजन में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं यूज करते हैं। देन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एंड जो आपका डिफ्यूजन है इसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही मूव करते हैं। ठीक है, मींस इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मूव करते हैं। जो हमारी ऑस्मोसिस है ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन जो आपकी डिफ्यूजन है ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई। नाउ पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। पाई इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम आर टी। अब यहां से हमें पता चल गया वॉल्यूम आया है, तो इट मींस ये जो कंसंट्रेशन है इसको हमने किस में एक्सप्रेस करा है? मोलैरिटी में, नॉट इन मोलैलिटी। एलिवेशन एंड डिप्रेशन वो किस में थी? आपकी मोलैलिटी में। ये किस में आई? आपकी कैपिटल एम, दैट इज द मोलैरिटी। नाउ पाई इज इक्वल टू, इट इज एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको अगेन हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑन बी। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया पहले तो कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस एक्सप्रेशन से। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल रही हूं। इट इज बहुत सिंपल है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ना अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? अभी तो हमने बात करी ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन की, और हमने इसको डिराइव भी कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज अ एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। आप नहीं चाहते हो कि ऑस्मोसिस हो, ठीक है, आप चाहते हो अभी ऑस्मोसिस को बंद किया जाना चाहिए, तो देयर इज मेथड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है? osmotic pressure. It is that extra pressure which is applied on the solution side to prevent osmosis. This pressure is called osmotic pressure. So ये थी हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें हमारी कुछ कंडीशंस हैं कि हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास ये जो हमने निकाला है ये कैसे मिल सकता है। इसके लिए आपकी कंडीशंस क्या है कि आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल, इट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। सेकेंड, आपका जो सोल्यूट है उसको ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। थर्ड, आपके सोल्यूट को एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं करनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आप ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो।
अब इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे पॉलीमर्स हो गए, प्रोटीन हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है। बड़े बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। So what's the reason why osmotic pressure is used to calculate the molecular masses of macromolecules? So there is logical answer also. First reason क्या है? The osmotic pressure values are measured at room temperature. आप रूम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज को मेजर कर सकते हो। सेकंड, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का आपने कुछ आंसर निकाला है, तो जो भी आपकी वैल्यूज आती हैं दीज आर मेजरेबल। आप उनको, दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, आप उनको किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। थर्ड इज जो है दैट इज कि हमने अपने इस एक्सप्रेशन में मोलैरिटी यूज करी है, मोलैलिटी नहीं। सो दीज आर द थ्री की पॉइंट्स which are used. On the basis of these 3 points, osmotic pressure is used to determine the molecular masses of macromolecules. तो ये कंडीशंस भी हमने डिस्कस कर ली, और ये क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ही पूछा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है छोटा सा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्यों प्रेफर करते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस कि रूम टेम्परेचर पर आप मेजर करते हो, इसकी जो वैल्यूज है मेजरेबल होती हैं, और थर्ड जो है इसमें मोलैरिटी यूज होती है, मोलैलिटी नहीं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें वैक्सीन जब लगते हैं, हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने से पहले वो एक सिरिंज के अंदर लिक्विड फिल करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन फिल किया, फिर उस सिरिंज के अंदर कुछ फिल करते हैं। वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? आपका सेलाइन सॉल्यूशन होता है, और उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 0.91% सेलाइन सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब ये जो एग्जैक्ट अमाउंट है सेलाइन सॉल्यूशन का, सोडियम क्लोराइड का, व्हाई दिस इज यूज्ड टू इंजेक्ट फॉर इंजेक्शन पर्पसेस के लिए हम अपनी इंट्रावीनस जो इंजेक्ट कराने जाते हैं, तो ये क्यों यूज किया जाता है? अब रीजन क्या है? बिकॉज जो आपका 0.91% मास बाय वॉल्यूम आपका जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, इट इज आइसोटोनिक विद द फ्लूइड प्रेजेंट इन आरबीसी। ये जो आपका सॉल्यूशन है इट इज आइसोटोनिक with the fluid which is present in RBC. आइसोटोनिक का मतलब कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो फ्लूइड हमारा आरबीसी के अंदर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सो ये स्मूथली वर्क करता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है तो इट लीड्स टू डेथ आल्सो। सो सिर्फ 0.91% सेलाइन सॉल्यूशन जो है वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। अब हमारी यहाँ पर टर्म आ गई है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड हमारी 3 टर्म्स आती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सारी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपकी टर्म्स हैं कि हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, तो दोनों सॉल्यूशंस की कुछ कंसंट्रेशन भी रहेगी और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी रहेगा। तो अगर किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या एक्ट करेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी 2 सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या है? जब आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं और दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। और उन आइसो मीन सेम, तो उन दोनों का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी सेम रहेगा। अब इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सपोज आपने आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, क्यों? तो क्या होगा? आपने आरबीसी को हाइपो में डाल दिया तो क्या होगा? आपने आरबीसी को आइसोटोनिक में डाल दिया तो क्या होगा? तो चलिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा। अब हाइपरटोनिक मीन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। आपने आरबीसी को डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इसको हमने किस में डाल दिया है?
आरबीसी को हाइपरटोनिक, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मीन उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई। अब हाइपरटोनिक के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारे आरबीसी में से जो है वो सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिमूव करके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे आरबीसी श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, द राइट आंसर इज इट विल लीड्स टू द श्रिंकेज ऑफ आरबीसी। अगर आप अपने आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, अब हाइपो मीन कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ। तो आपके आरबीसी के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो आरबीसी है वो क्या शो करेगा? स्वेलिंग। वो भी डेंजरस है, श्रिंकेज भी डेंजरस है, स्वेलिंग भी डेंजरस है, इट विल लीड्स टू रप्चरिंग ऑफ सेल। अगर हमारा आरबीसी आइसोटोनिक में डालते हो तो हमारा जो आरबीसी है वो सेफ है। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसूल्स, जो हमारे ब्लड बनाने में काम आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड व्हाट इज द इफेक्ट इफ आवर सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इसके से रिलेटेड काफी सारे आपके क्वेश्चंस हैं। आपने देखा होगा आजकल बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल चलती है, हर यंगस्टर्स से लेकर ओल्ड एज में जाके तो बीपी प्रॉब्लम होती ही होती है। यंगस्टर्स को ज्यादा बीपी प्रॉब्लम है। तो जब किसी को बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर इसका बॉइलिंग ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करते हैं कि अपने नमक पर आपने कंट्रोल करना है। सो व्हाई दीज पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। सपोज जिसका बीपी हाई है, उसे उसको नमक खाने की बहुत ज्यादा आदत है, वो बहुत नमक खाता है, तो क्या होगा? वो बहुत नमक इनहेल कर रहा है, तो क्या होगा? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, और इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी कि धीरे धीरे उसकी सेल्स रप्चर भी हो सकती हैं एंड लीड्स टू ब्रेन हैमरेज आल्सो। तो इसलिए जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो हाई बीपी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारा आता है फिशेस। आपके पास एक एक्वेरियम है, आपने फिशेस रखी हुई हैं, आपने उसमें अंदर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन थी, आपने इमीडिएटली अपनी फिशेस को निकाला, उस एक्वेरियम में डाला जिसमें अब कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, प्योर सॉल्वेंट है, तो क्या होगा? आपकी फिशेस सरवाइव करेंगी या वो मर जाएंगी? आंसर इज द फिशेस विल डाई। आपने हाई कंसंट्रेशन में से निकालकर इमीडिएटली उनको वाटर में डाल दिया है। अब फिशेस की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो अब क्या होगा? आपने उसको बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया है, दैट इज द वाटर। अब वाटर के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, फिशेस के अंदर ज्यादा है। जैसे आपने उसको नॉर्मल वाटर में रखा, द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम आउटर टू इनसाइड द फिशेस। तो क्या होगा? फिश जो है उसकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी सेल्स रप्चर हो जाएंगी एंड फिश विल डाई। So ऐसे हमारे पास unlimited questions are related to the osmotic pressure. So this is all about osmosis and osmotic pressure. There is one more term that is reverse osmosis. क्या होती है reverse osmosis? Again, आप osmosis को stop करना चाहते हो, क्लियर? तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होती है? बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये इस बार भी आपका क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर राइट द फ्यू मोर एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक, तो हम और भी एप्लीकेशन से लिख सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन रिलेटेड टू रिवर्स ऑस्मोसिस। डीसैलिनेशन, कि आपने पानी में से नमक निकाला है, नमक के अलावा कुछ और भी मिनरल्स होते हैं सी के अंदर, उनको रिमूवल करना, उनकी रिमूवल करना, दैट इज सेड टू बी द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारी स्टडी करी। छोटा सा टॉपिक बचता है, देन वी विल फिनिश आवर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का, दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्यों आते हैं? अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आते हैं या तो एसोसिएशन की वजह से और या डिसोसिएशन की वजह से।
अब अगर आप बात करते हो एसिटिक एसिड की, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस ये आते हैं या तो आपकी एसोसिएशन से या आते हैं आपकी डिसोसिएशन की वजह से। फर्स्टली विल डिस्कस एसोसिएशन। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 एक्चुअल जो है, लेकिन इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या है एक्चुअल में डबल। तो रीजन क्या है, जो आपका एसिटिक एसिड है ये सॉल्यूशन के अंदर जब आपने इसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जब पास पास में आते हैं सो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। तो अब ये एक ही मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये दो है ना, बट अपीयर्स टू बी द वन, इट एग्जिस्ट एज डाइमर। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो तो ये 60 नहीं आता है, ये कितना आता है 120। सो इट इज ड्यू टू द एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो एसोसिएट हो रहे हैं। सो दिस इज ड्यू टू एसोसिएशन। नेक्स्ट डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या होता है, आपके पास एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो डिसोसिएशन करते हैं। सपोज आपका है KCl, KCl अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो KCl का आपका जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.9 79.5 आता है। लेकिन अगर आप इसको, ये तो है एक्चुअल में कैलकुलेटेड, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है 39.25। अगेन इट इज ड्यू टू डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। अब हमने डिस्कस करना है कि इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ क्या लिंक है। मैं दोनों एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों में बात करती हूँ कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कैसे लिंक है। जब एसोसिएशन हुई तो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, दो मॉलिक्यूल्स एक एक नजर आते हैं। एसोसिएशन में आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, number of molecules decreases। जब number of molecule decreases means colligative property also decreases because colligative properties depends upon the number of molecules। तो एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो colligative properties भी कम हो गई। now colligative properties are inversely related to molecular mass, these are inversely related to molecular mass। तो जब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। एसिटिक एसिड का एक्चुअल जो है वो 60 है, लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितना आया है 120। क्यों आया है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो गई हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है। तो ये था केस हमारा एसोसिएशन के लिए। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होता है आपका, डिसोसिएशन उसमें क्या है, सपोज मेरे पास KCl है, तो KCl में मैंने आपको बताया क्या किया KCl ने, एक KCl दो आपके उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर नंबर आपको कितने नजर आ रहे हैं, दो। अब यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो गया, जब नंबर इंक्रीज हो गया मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी, बिकॉज वी नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर इंक्रीज हुई हैं तो मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज। इसीलिए जो आपका KCl का मॉलिक्यूलर मास है वो 79.5 नहीं, आपको जो ऑब्जर्व नजर आता है वो कितना आता है 39.25। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आपका आता है, दैट इज द वैन होफ फैक्टर। वैन होफ एक साइंटिस्ट था जिसने हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन का थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन बताई थी। इन 1886 में उसने हमें ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी हमें बताया था। वैन होफ फैक्टर का सिंबल होता है I। तो अकॉर्डिंग टू वैन होफ फैक्टर, इसका सिंबल होता है स्मॉल I। तो वैन होफ फैक्टर की कुछ वैल्यूज हैं एसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए, और जिसमें सोल्यूट एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करता है।
फर्स्टली फॉर एसोसिएशन, अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन हो रही है तो आपकी जो आई की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 1। अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन हो रही है तो आपकी आई की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 1। देन अगर कोई भी ना एसोसिएशन है आपकी ना डिसोसिएशन है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, हियर i इज इक्वल टू 1। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एसोसिएशन व्हाट इज द i वैल्यू, फॉर डिसोसिएशन व्हाट इज i वैल्यू, एंड फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन i की वैल्यू क्या रहती है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है फॉर एसोसिएशन इट इज i माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। m क्या है आपका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, i minus 1 upon m minus 1। Similarly, we can calculate degree of dissociation। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 1। 1 अपॉन n का मतलब क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अंडरगोइंग डिसोसिएशन। So by these two formulas we can calculate degree of association and the degree of dissociation. So this is all about our chapter solution. I hope मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इसको आपकी कंसेप्ट्स को क्लियर करवाया है। अगर किसी को इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप इसमें कमेंट कर सकते हो।